to our YouTube channel, Shri Keteshwar English Academy and Childcare. In this session of class 10, we are going to further get acquainted with the On Violence chapter. In our previous session, we have discussed some of the glossary words which were helpful in our text, and we came to know about violence, the types of violence. We came to know that violence is everywhere in this world, and we have to do something to carve it out. The types of violence we have discussed in our previous session was physical violence. The very first type was physical violence. What was physical violence? Physical violence is the violence when we try to kill someone, hurt someone, to say cruel things to someone, and that all is deliberately, consciously, with a conscious mind. I am conscious in my mind and I am deliberately, जानबूझ के, intentionally मैं किसी को मार रहा हूँ, चाहे मैं किसी को हिट कर रहा हूँ, चाहे मैं किसी को किल कर रहा हूँ, whatever I am doing, that is violence. If I am saying bad words, if I am fighting, if I am saying cruel things to someone, go to hell or something like that, all these words are type of violence, occurring physical violence. Physical violence is violence in which we kill someone, we hurt someone, we say cruel things to someone, and with intention, with the conscious mind, deliberate actions. All these things fall under physical violence. Number 2 type was inward violence. What is inward violence? Inward violence and unruly violence, internal violence. In this, we want people to change according to us. What I am thinking, that is correct, and I want other people to think as I am thinking. I am forcing them to follow my leads and follow me according to what I am doing or what I am saying. Okay? Want to change people according to us, according to our thinking, to change their mentalities according to our, and forcing them to do so. This is called inward violence. Battling or quarreling with ourselves, अंदर ही अंदर खुद से ही लड़ना, किसी दिक्कत की वजह से, किसी परेशानी की वजह से, या किसी जनरल तरीके से अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश तो अच्छी होती है, लेकिन अपने आप से ही कहना कि नहीं तुम नहीं कर पा रहे या मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ या समथिंग, इस तरीके का डिप्रेशन में जाने का क्षेत्र जो है उसी को कहते हैं हम लोग इनवर्ट वायलेंस. ऐसा वायलेंस जो हमें अंदर से कचोड़ता है, खाता है. ऐसा वायलेंस जो हमें अंदर से परेशान करता है, झुंझेड़ता है, जो हम किसी और पर दर्शा नहीं सकते, लेकिन खुद ब खुद भर जाते हैं अपने अंदर. इसके अलावा ये अंदर वाला जो वायलेंस है, आपका जो इनवर्ड वायलेंस है, ये आपको आउटरेज गुस्सा बनाता है, और आपका आउटरेज जो है वो कहीं ना कहीं इससे फॉर्म होकर फिजिकल वायलेंस बनता है. तो दिस इज द इनवर्ड वायलेंस. We have discussed these two types of violence in our previous session of the class 10. We have read some text related to it. We came to know about the definition of physical violence as well as inward violence. We have discussed it completely thoroughly, and we have took a quick glance of it. Now, moving towards our text, new text. First, we are going to do, as our custom, as our ritual is, we have to read out some glossary, which would be helpful for us during our reading of text. Let's know and see what are the words. The first word is inherent.
फर्स्ट वर्ड इज इनहेरेंट, इनबॉर्न या नेचुरल। फर्स्ट वर्ड है आपका इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब होता है जो इनबॉर्न हो, जो अंदरूनी आपके अंदर पहले से ही हो उपस्थित, या नेचुरल हो। जैसे कोई में किसी में ऐसा टैलेंट होता है कुछ, तो वो टैलेंट जो है इनबॉर्न हो, ऑलरेडी जन्म के साथ जो मिला हुआ, नेचर से ही डायरेक्टली उनको मिला हुआ, नेचुरली वो अंदर से उनके डेवलप हो रहा हो। किसी को आर्टिस्टिक यानी पेंटिंग का अंदरूनी वो होता है, वो हो गया। किसी भी तरीके का चीज़ हो सकती है जो इनबॉर्न टैलेंट कह सकते हैं, या इनबॉर्न जो चीज़ें होती है वो इनहेरेंट होती है। रेशनल, सेकंड इज रेशनल। रेशनल का मतलब होता है वाइज, अक्लमंद, होशियार, बुद्धिमान। इन चीज़ों को देखना, इन चीज़ों से कार्य करना, बुद्धिमत्ता से काम करना, सोच कर काम करना, विचार के काम करना, किसी चीज़ को रेशनल थिंकिंग रखना, उसी को हम कहते हैं वाइज या रेशनल। नेक्स्ट है ब्रूटल। क्या है? ब्रूटल, वायलेंट एंड क्रूअल। एक्चुअली द वर्ड इज ब्रूट, brute, it is used for animal, and brutal is forming from brute, so it is like the behavior which is violent, गुस्से, violent और cruel, जो बुरा हो, ऐसा व्यवहार, उसी को हम लोग brutal कहते हैं। vaporized, vaporized, vaporized का मतलब disappeared like vapor। जिस तरीके से भाप, स्टीम, जो हम लोग पानी उबालते हैं, पानी के ऊपर ढक्कन नहीं लगाया हमने उस बर्तन पे, तो पानी उबल के भाप की तरह ऊपर जाता है, और जो भाप है किस तरीके से गायब हो जाता है, उस तरीके से वेपराइज होना। तो वेपराइज्ड का मतलब हुआ डिसअपियर लाइक वेपर्स, वेपर्स की तरह डिसअपियर हो जाए, गायब हो जाए। एंड द वर्ड इज जेनरोसिटी। जेनरोसिटी इज काइंडनेस, दया का भाव, दयालु होना। जनरॉसिटी का मतलब ही है काइंडनेस, दयालु बनना, दयालु होना। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा कार्व आउट, डेवलप या मेक। टू कार्व आउट, डेवलप होना या मेक, बनाना। जैसे आपको एग्जांपल दूं, मान लो कि एक बड़ा सा पत्थर है, बहुत बड़ा सा, उस बड़े से पत्थर के अंदर से अगर मैंने कोई डिजाइन बना के वो मूर्ति निकाली है, and I have carved out a shape of that image from that stone big, that is called carve. Then it is bliss, supreme joy, the happiness, खुशी, supreme, जो सबसे ऊंची खुशी होती है, इससे ज़्यादा कुछ चीज़ें हो ही नहीं सकती खुश रहने के लिए, या बेस्टेस्ट थिंग दैट वी एवर हैपेंड इन अस, जॉय, सुप्रीम जॉय, बहुत ज़्यादा हैप्पी होना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, उसी को हम लोग कहते हैं सुप्रीम जॉय। तो आई होप यू हैव गॉट दिस ग्लॉसरी। लेट्स रीड आवर चैप्टर टेक्स्ट which we have left in our previous class, and you have already done the revision. So types of violence: physical, inward, physical, inward. Physical violence is violence which is to kill deliberately someone, hurt, just say cruel things. Inward is want to change people according to our thinking, battling with each other, ourselves, is called inward. Okay, let's read it out and find out some other things related to this chapter. Page number 21, paragraph number 3rd. There is violence between husband, wife and children. एक husband के बीच में, एक husband और wife के बीच में, बच्चों के बीच में there is a violence. Violence है, उनके बीच में भी violence होता है. There is violence, antagonism, hate, cruelty, ugly criticism, anger. All this inherent in man, inherent in each human being. It is inherent in you. एक हस्बैंड, एक वाइफ, एक बच्चे के बीच में भी वायलेंस हो सकता है। वायलेंस और एंटेगोनिज्म जो है वो सब जगह है। दूसरी चीज इसके साथ हेट, नफरत, क्रूएलिटी, अगलीनेस, ठीक है, ये एंगर, क्रिटिसिज्म, ये
सारी जो चीजें हैं एक ह्यूमन बीइंग को इनहेरेंट मिलती है, इनबॉर्न होती है हमारे अंदर। ये ऐसे फीलिंग्स, ऐसे भावनाएं जो है ये इनबॉर्न हमारे अंदर जन्मजात से ही डेवलप्ड होती है, ठीक है। वो धीरे धीरे निकलती है बाहर, बट होती है हमारे अंदर पैदाइश से। हम तो ये सीखते नहीं है कि ऐसे गुस्सा करना चाहिए, हम लोग सीखते नहीं है, ठीक है ना, ऐसे क्रिटिसाइज करना चाहिए, हम लोग ये सीखते नहीं है। दीज आर इनबिल्ट, हैप्पी, खुश होना, ये इंटरनल आता है, खुशी, रोना, दुखी होना, ये सब इंटरनल है। दीज आर द फीलिंग्स दैट आर इनबॉर्न और नेचुरल इन अ ह्यूमन बीइंग, और ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग हैव इनहेरिटेड ऑल these things. You also are human being, you are also being inherited by these things. And education is supposed to help you to beyond all that, not merely to pass an examination and get a job. Education, शिक्षा जो है वो हमारी इस चीज में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होता है, शिक्षा का महत्व सिर्फ ये नहीं होता है कि आप अच्छी से पढ़ाई करें, अच्छे मार्क्स लाएं और क्या हो जाए, एक अच्छी जॉब हो जाए। एजुकेशन डज नॉट मीन दिस। Education is not only, it is not only entitled for good marks और job। एजुकेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपने शिक्षा प्राप्त की, आपने बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए और आपने बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने के बाद एक बहुत अच्छी जॉब पा ली, ये ही सिर्फ शिक्षा नहीं है। एजुकेशन इज कंप्लीट पैकेज इन विच you yourself become a real human being with all good and bad things. You know, you can understand what is right and what is wrong. You can differentiate between the right and the wrong. That is education. You have to be educated so that you become a really beautiful, healthy, sane, रैशनल ह्यूमन बीइंग। आपको एजुकेट इसलिए किया जाता है ताकि आप हेल्दी रह सकें, कि आप जानोगे तो आप गलत चीज़ों से दूर रहोगे, तो ऑटोमेटिक हेल्दी रहोगे, आप एक रेशनल व्यक्ति बन सकते हैं। रेशनल व्यक्ति जो समझदार हो, समझ रखता हो, जानता हो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, वाइजनेस हो, सेन जो अकल से क्या हो, पैदल नहीं हो, बेवकूफ़ ना हो, ब्यूटीफुल, सुंदर तो होंगे, ठीक है, इस तरीके के ह्यूमन बीइंग बने। Not a brutal man, a brutal man with clever brain who can argue and defend his brutality. Education से आप एक healthy, sane, rational व्यक्ति बनते हैं, ना कि एक brutal person। आप एक brutal व्यक्ति नहीं बन सकते, क्योंकि एक brutal व्यक्ति जो होता है अपने ही arguments को क्या करता है, अपने नॉलेज की वजह से, अपने एजुकेशन की वजह से, नॉलेज की वजह से अपने पॉइंट्स को रखने के लिए ब्रूटल आदमी आर्गुमेंट्स देता है टू जज हिज ओन थिंग्स, टू टेल दैट ही इज राइट, ठीक है। आर्गुमेंट शो करता है टू डिफेंड हिज ब्रूटैलिटी। यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो। आप जैसे जैसे ग्रो होते जाएंगे, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, यू आर गोइंग टू फेस दिस ब्रूटैलिटी, सॉरी दिस वायलेंस। ये जो वायलेंस है, ये जो वायलेंस हम लोग देख रहे हैं आज, ये वायलेंस जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे आप भी इसको फेस करोगे, आपके सामने भी तो आएगा ये सब कुछ। तो अभी जो चीज़ अंदर है वो कभी ना कभी तो बाहर आएगी ना। You will forget all that you have heard here. ये जो आज मैं सिखा रहा हूँ आपको, जो मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप कंट्रीब्यूट करोगे, ये सारी चीज़ें आप फॉरगेट कर जाओगे और वही ब्रूटैलिटी, सारी चीज़ें आपके अंदर डेवलप हो जाएगी और उस गुस्से को आप भी निकालोगे एक दिन। एजुकेशन का मतलब है हेल्दी ह्यूमन बीइंग, सेम, वाइज, रेशनल बनने से, ना कि ब्रूटल पर्सन जो अपने ही ब्रूटल थिंग्स को, ब्रूटल चीज़ों को डिफेंड करने के लिए आर्ग्यू करता है अपने एजुकेशन का यूज। You will become like the rest of the cruel, hard, bitter, angry, violent world. तुम भी उन्हीं की तरह क्रूअल, दयाहीन,
हार्ड, सख्त, बिटर, कड़वे, एंग्री, गुस्सैल, वायलेंट वर्ल्ड की तरह हो जाओगे। एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू सोसाइटी एंड न्यू वर्ल्ड। अगर तुम इस तरीके के व्यक्तित्व का अपने अंदर डेवलपमेंट करोगे, इस तरीके के ब्रूटल व्यक्ति बनोगे जो अपने ब्रूटैलिटी को साबित करने के लिए आर्गुमेंट्स करता है विद द हेल्प ऑफ हिज ओन एजुकेशन, तो आप भी क्या बनोगे? बिटर, हार्ड, क्रूअल, वायलेंट वर्ल्ड में हिस्सेदार बनोगे और उसी सोसाइटी में आप उसके जैसे बनोगे, ना कि आप कुछ नया और परिवर्तन करने वाले बनोगे। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा गलत है। एजुकेशन का मतलब ही है कि आप अपने आप को रेशनल बनाए, वाइज बनाए, सोचे, समझे और सही का गलत का सोच समझ कर साथ दें। इन चीज़ों को जो समझता है, इन चीज़ों को जो बताता है, वही तो प्रॉपर जानता है सबसे, वही प्रॉपर तरीके से काम करेगा, उसी का सब कुछ प्रॉपर रहेगा। तो एजुकेशन का मतलब ये है। लेकिन अगर आप अपने आप को आज नहीं सुधारते हैं, अगर आप अपने आप को इस तरीके से बनाना चाहते हैं, तो आप उस सोसाइटी के अंदर हिस्सेदार बनोगे, ना कि उस सोसाइटी को बचाने वाले। बट अ न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी। राइटर कहता है कि नया विश्व जो है, एक नया वर्ल्ड जो है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि हम एक नए विश्व का क्या करें? आगाज़ करें, एक नया राष्ट्र बनाए, एक नई दुनिया को डेवलप करें। और अगर हम एक नई दुनिया को डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो वही गुस्सा, वही सब कुछ सेम रहेगा और वही दुनिया चलती रहेगी। अ न्यू कल्चर इज नेसेसरी। एक नए कल्चर को बनाने की आवश्यकता है। द ओल्ड कल्चर इज डेड। जो पुराना कल्चर है, इट इज डेड, वो मर चुका है, खत्म हो चुका है। इट्स बरीड, बर्न्ड, एक्सप्लोडेड, वेपराइज्ड। क्योंकि जो पुराना कल्चर है वो कंप्लीटली डेड हो चुका है, वेपराइज्ड हो चुका है, बर्न्ड हो चुका है। हमें एक नया कल्चर बनाने की आवश्यकता है, हमें एक नया सिस्टम बनाने की आवश्यकता है। यू हैव टू क्रिएट अ न्यू कल्चर। तुम लोग जो आज के स्टूडेंट हो, कल का भविष्य हो, आज की जो नई जनरेशन जो आप लोग सीख रहे हैं, जो आप स्कूलों में बैठे हैं, आप जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये आप लोग हो जिनको पहल करनी होगी एक नए विश्व को बनाने में। आप अगर ब्रूटैलिटी खत्म कर देंगे, एक दूसरे के प्रति कोई जेलसी की भावना, ब्रूटल चीज़ें, क्रूअल थिंग्स, एंग्रीनेस, गुस्सा नहीं दिखाते हैं एक दूसरे को, और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी और हाथ में हाथ डाल के आप चलते हैं, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, तो ज़रूर हम एक नए कल्चर को डेवलप कर पाएंगे, एक नए वर्ल्ड को कंप्लीट कर पाएंगे। आप लोग जो नई जनरेशन है, आप लोग ही हैं वो जो स्टेबिलिटी शो कर सकते हैं एक नए कल्चर की तरफ। आपको उठाना पड़ेगा वो पहला कदम, जिसमें आप ये जो आज सीखी हुई चीज़ें हैं उनको दोहराएंगे, एकदम वाइज रेशनल थिंकिंग रखेंगे, क्रूएलिटी से दूर रहेंगे, अगलीनेस से दूर रहेंगे, एंगर से दूर रहेंगे, तभी जाकर आप बना पाएंगे एक नए कल्चर को, एक नए कल्चर का साथ। अ न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस। जो नया कल्चर आपको बनाने को कहा जा रहा है, जो हम लोग कह रहे हैं, वो वायलेंस पे बेस्ड नहीं हो सकता। यू कैन नॉट डेवलप अ न्यू कल्चर बेस्ड ऑन वायलेंस, क्योंकि वायलेंस के ऊपर अगर बेस्ड है तो पुरानी कल्चर, पुरानी सोसाइटी से क्या कम है। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू बिकॉज द ओल्ड जनरेशन हैज बिल्ट अ सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस, बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, एंड इट इज दैट कल्चर that has caused all the confusion in all myself. नया कल्चर जो है आप लोगों पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप लोग हैं, क्योंकि पुराने लोग जो थे उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी बसा रखी थी जो वायलेंस से बेस्ड थी, एग्रेसिवनेस पे बेस्ड थी, गुस्से से बेस्ड। तो वो चीज़ों को हटाना है और एक नए कल्चर को जन्म देना है, एक नए तरीके को जन्म देना है, नए सिद्धांतों को जन्म देना है, जिसमें सिर्फ प्यार की भावना हो, सिंपैथी हो एक दूसरे के प्रति, है ना। ऐसे कल्चर को डेवलप करना है जिसमें वायलेंस बिल्कुल ना हो। The older generation have produced this world and you have to change it. जो older generation है उसने इस वर्ल्ड को प्रोड्यूस किया है और तुम वो हो जिसे इसे बदलना है, चेंज करना है। इस वर्ल्ड के अंदर जो गलतियाँ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, वो जो नफरत बन गई है, उसको मिटाना है और एक हार्मनी, एक फ्रेटर्निटी, एक ब्रदरहुड को डेवलप करना है।
यू कैनॉट जस्ट सिट बैक एंड से, आप पीछे बैठ के सिर्फ ये नहीं कह सकते आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ पीपल एंड सी द सक्सेस एंड पोजीशन। आप सिर्फ बैठ के ये कतई नहीं कह सकते कि मैं तो बस बाकी जगह में जैसा किया है उनको फॉलो करूंगा, जैसा उन्होंने किया वैसा मैं करूंगा और आराम से पोजीशन प्राप्त करूंगा, सक्सेस प्राप्त करूंगा। नहीं, सिर्फ कहने से होगा नहीं। और फिर क्या हासिल हो जाएगा ऐसे सक्सेस से, ऐसे पोजीशन से? क्या प्राप्त करेंगे इन चीज़ से? कुछ नहीं मिलने वाला है। इसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा। आपको जो भी आप सीखेंगे, जो भी आप पढ़ेंगे, उन चीज़ों को कुछ करना होगा। तो इस तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग कुछ कर पाएंगे, अन्यथा ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे बढ़ने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए, एक नई जनरेशन, एक नया कल्चर डेवलप करने के लिए, एक नया उत्थान करने के लिए आपको बैठे नहीं रहना है, मगर खड़े होकर दृढ़ता के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ के हेल्प करनी है और अपना पहला कदम उठाना है। कि कोई और पहला कदम क्यों उठाए, तुम क्यों नहीं, ऐसा सोच के आगे। If you do, your children are going to suffer. You may have a good time, but your children are going to pay for it. So you have to make all that into account. The outward plurality of man to man in the name of God, in the name of religion, in the name of self-importance, in the name of security of family, you will have to consider the outward plurality of violence. The inward violence will you do not know yet know. क्या कहते हैं राइटर? कह रहे हैं कि अगर आप बैठे रहे और आपने पोजीशन वगैरह हासिल कर ली, हो सकता है कि आप अच्छा समय बिता लेंगे, आप एक अच्छी जिंदगी को जी लेंगे, बट इस चीज़ का खामियाजा आपके बच्चों को सफर करना पड़ेगा। आप आने वाली पीढ़ी, आपके आने वाले जनरेशन को ये चीज़ें भुगतनी पड़ सकती। अगर आप अच्छे से अपना ज़िंदगी तो बिता लेंगे, लेकिन आने वाला जो भविष्य है आपका, आपके जो बच्चे हैं, उन्हें सफ़र करना पड़ेगा। ये जो आउटवर्ड क्रूएलिटी है मैन के अंदर का, मैन टू मैन, एक मानव के दूसरे मानव के प्रति, एक ह्यूमन बीइंग की दूसरे ह्यूमन बीइंग के प्रति, रिलीजन्स के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ये जो लड़ाई, ये झगड़े, ये नफरत जो पनपी हुई है, ये मिटानी और मिटनी ज़रूरी है। अगर ये इस तरीके से चलती रही तो हो सकता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब कुछ चीज़ें हाथ में नहीं हैं। हमें इस चीज़ को रोकना है। ये जो झूठ रिलीजन के नाम पर बोला जाता है, ये जो जाति को लेकर दंगे फसाद लड़ाई होते हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। ये सब इंसान को इंसान से दूर करने की तरीका है। एक मानव, एक ह्यूमन बीइंग को, ये ह्यूमन बीइंग का धर्म समझना चाहिए कि एक मानव मानव है, उससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। There is nothing bigger than this. And why to try and fight? Stay strong at your place, stay strong at your position and work for your family, for your goodness, for others' goodness, instead of just fighting with each other. This goodness will develop all the things. This goodness will develop a new culture, a new way, a new life. ऐसी जिंदगी जो आपको आगे बढ़ाएगी। जो आउटवर्ड क्रूएलिटी गॉड के नाम पे, जो रिलीजन के नाम पे दिखाई जाती है, उन चीज़ों को हटाना होगा। नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस जो है कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मेरे को दिखाना, मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है, सिर्फ अपने को नहीं, हमें सबको साथ लेकर चलना है, ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। फैमिली सिक्योरिटी के नाम पर और बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, वो गलत है। You will have to consider the outward cruelty and violence and the inward violence which is you do not know yet. इस outward cruelty को तो आप देख सकते हो, पहचानते हो और आप जानते हो, तो आप इसका सॉल्यूशन अभी कर सकते हो। और जब आप बड़े हो जाओगे, inward violence भी डेवलप होगा। जब वो violence आपके सामने आएगा तो आप क्या करेंगे? क्योंकि अभी आप इस एज में नहीं है कि उस inward violence के से जूझे या उससे पहचाने। जो इनवर्ड वायलेंस है
वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक दिक्कत होता है। अंदर ही अंदर टूटना और गलत महसूस करना और कुछ हासिल ना कर पाने का दुख करना, वो इनवर्ड वायलेंस ही तो है। आपने देखा अभी कुछ समय पहले ही सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, तो वो एक इनवर्ड वायलेंस था उसका, जिसने उसे मजबूर कर दिया इस प्रकार की हरकत करने की। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि ऐसी हार्मनी, ऐसे लव, ब्रदरहुड, अफेक्शन के साथ ज़िंदगी को जिए, अपने साथियों के साथ, अपने लोगों के साथ, सभी के साथ। तो ये ज़रूर रहेगी नहीं, ये वायलेंस आएगा ही नहीं। और जब वायलेंस ही नहीं होगा, then everybody will be happy, everybody will be prospective, prosperous. They will think about themselves, they will work according to themselves, which is more required today. Unless this thing. I hope you understand. I hope you got my point. It is very important. Only education is the thing that it makes you healthy, sane, rational. It is not for your brutality. So do not defend your brutality with education. Learn it. We will continue in our next class. Thank you. Have a nice day.